First of all, good afternoon to all my sweet students. My name is Nawaz Makada and welcome to my YouTube channel Nawaz the Teaching Key. In the previous video, we have discussed the functions of management. Again, I am repeating total there are mainly 5 functions of management, that is planning, organizing, thereafter staffing, डायरेक्टिंग एंड द लास्ट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट इज़ द कंट्रोलिंग। उसमें से हमने लास्ट वीडियो जो था हमारा, हमने उसमें से ये 3 डिस्कस कर लिए थे और आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस 2 फंक्शन रिमेनिंग 2 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज़ द डायरेक्टिंग एंड द कंट्रोलिंग। और उसके अलावा मैं आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ कोऑर्डिनेशन, द कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन विच इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द examination point of view. Okay, so without wasting time, let's start with the 4th functions of management, that is directing. Okay, so अगर हम generally बात करें what is directing, okay, you have recruited the staff. In the staffing what you have done, you have selected the staff for your company. अब अगर directing पे हम आएंगे तो डायरेक्टिंग में हम क्या कर रहे हैं, सिंपल अगर हम देखें तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, वी आर providing guidance to our employee. What we are doing, we are providing guidance to our employee is known as the directing कि उनको किस वे में क्या काम करना है. ओके, you are showing true path to them because all the employees are not expert in their work. It may happen that they are new in their work, so you have to provide, means supervisor or manager have to provide guidance to them. It is known as the directing. Okay, जनरल मैंने आपको लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर दिया, उनको गाइडेंस देना, उनको एडवाइस देना, वो क्या हो जाएगा, डायरेक्टिंग हो जाएगा. So let's start with the in detail. Direction means to guide and to supervise the employees for the accomplishment of objectives. Now why we are providing guidance to them, okay, why we are supervising them, because we want to achieve the objectives. हमें क्या करना है, हमारे जो objectives है बिजनेस के उसको अचीव करना है, इसलिए हम उसको क्या कर रहे हैं, we are providing guidance and supervising. okay, अगर आप उनको गाइडेंस दे रहे हो या उनको सुपरवाइज कर रहे हो तो वो क्या हो जाएगा आपका डायरेक्टिंग. In order to achieve the predetermined objectives, it is very important to direct and supervise employees of an organization effectively. अब देखो, जनरली हम बोले तो अगर आपको ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने, आपने प्लानिंग कर लिया, ऑर्गेनाइजिंग कर लिया, स्टाफिंग कर लिया, अब उसके बाद अगर आप उनको गाइडेंस नहीं दे पा रहे हो प्रॉपरली, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल इफ़ यू आर नॉट प्रोवाइडिंग गाइडेंस टू दैम, इफ़ यू आर नॉट गिविंग, इफ़ यू आर नॉट शोइंग द ट्रू पाथ to your employees, so your work is you can say you will not able to achieve your objectives. तो अगर आपको objectives अचीव करने हैं तो आपको उनको क्या करना पड़ेगा, गाइडेंस देना ही पड़ेगा. ओके, you have to provide guidance to your employees. In a business unit, planning is done after defining objectives and ideal organization structure is formed. Raw material, machineries are purchased. Here you can see machineries are purchased, staff is appointed. अब देखो आपने क्या किया, पहले प्लानिंग की. ओके, व्हाट यू हैव डन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव डन द प्लानिंग. ओके, देयर आफ्टर यू हैव यू कैन से दी आफ्टर प्लानिंग यू हैव मेक द स्ट्रक्चर ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन कि हमारा स्ट्रक्चर कैसा होगा, हाउ मैनी डिपार्टमेंट्स विल बी देयर, ओके, हाउ मैनी वर्कर्स विल बी देयर, how many employees will be there. Okay, so this is the organization structure which you have created. उसके बाद आपने क्या किया होगा, staffing means you have selected the staff for your company. अब उसके बाद ये सब कब हुआ, आपने जब प्लानिंग की, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन किया, उसके बाद स्टाफिंग किया, आपने मटेरियल परचेस किया, रॉ मटेरियल, मशीनरी परचेस की, उसके बाद सब कुछ करने के बाद अगर आपने ये जितनी भी इफ़र्ट्स की है ये यूज़लेस हो सकती है, क्या हो जाएगी, यूज़लेस. ओके, यूज़लेस. अब ये यूज़लेस कब होगी, इफ़ यू आर नॉट एबल टू प्रोवाइड द प्रॉपर डायरेक्शन टू योर एम्प्लॉयज़. समझ में आया आप लोगों को कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ. आपने जितने भी फंक्शंस कर लिए मैनेजमेंट के, प्लानिंग कर लिया, ऑर्गेनाइजिंग कर लिया और स्टाफिंग कर लिया, ये तीनों फंक्शन आपके यूज़लेस हो सकते हैं अगर आप उनको आपकी जो गाइडेंस जो देना है वो आप नहीं दे पा रहे हो.
You have to show the proper direction to them, in which way they have to walk. It is known as the direction. Okay. Other management functions are worthless without direction. Direction includes various activities like to direct the subordinates. अब देखो आपको भी क्वेश्चन आता होगा कि डायरेक्टिंग में क्या क्या आएगा. अब देखो डायरेक्टिंग मीन्स व्हाट. टू डायरेक्ट द सबऑर्डिनेट्स, टू सुपरवाइज देम, टू गिव ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस. अब देखो इसका मतलब ये नहीं है, डायरेक्टिंग का मीन्स ओनली नहीं कि गाइडेंस ही देना, उनको सुपरवाइज करना, उनको ऑर्डर्स देना एंड इंस्ट्रक्शंस देना. टू फिक्स द वर्क, टू मोटिवेट द वर्कर्स. अब देखो इसमें क्या क्या आएगा. पहले आप उनको ऑर्डर्स दे रहे हो, इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, पहले आप उनका काम फिक्स कर रहे हो कि आपको क्या क्या काम करना है. उसके बाद हमको ऑर्डर दोगे कि आपको इस वे में काम करना है. उनको वो काम कंप्लीट करने के लिए यू विल provide instructions to your employee, or thereafter you will supervise them. And motivation is also include, if you want to maintain interest of your employee, so you have to motivate them. Motivation होगा वहाँ पे तो ही उनका interest maintain होगा, and they will take you can say the more interest in their work. और उनके बाद आपको क्या करना है, उनको leadership provide करनी. तो ये सब क्या होगा, it is known as the directing. Direction is a continuous process. It is required at every level of management. We have discussed there are mainly 3 levels of management. First is top level management. This is the revision. Top level management, middle level management, as well as the lower level management. तो सब लेवल पे आपको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्शन देना ही पड़ेगा. then and then you can say the then and then the productivity will be more. अब देखो मैं फिर से रिविजन कर रहा हूँ. डायरेक्टिंग मीन्स क्या होगा, टू supervise your employee, to motivate the employee, to fix the work, to give them the orders as well as the instruction. Okay, so it is what, it is the directing. Now we are going to discuss the last function of management, which is known as the controlling. We are going to discuss the controlling functions of the management. So now what is the question arise, that what is the meaning of controlling? Controlling means what? If we say in a simple language, the meaning of controlling is to see whether the work is completed according to planning or not, or whether your work is going on according to the set standard or set plan or not, is known as the controlling. Okay, अब अगर आप चेक कर रहे हो कि आपने जो प्लान किया था, जो आपने स्टैंडर्ड सेट किया था, उसके हिसाब से आपका काम कंटिन्यू हो रहा है या काम हो पा रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, वी विल कॉल इट एज अ कंट्रोलिंग. हम खाली क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं. ओके, वी आर चेकिंग. इट इज़ नॉट अ नेगेटिव concept, it is a positive concept. Keep in your mind, controlling is the positive concept. Okay, now if we talk about the if we talk about according to the you can say the you can see in this you can say the if we talk about according to traditional concept, अगर हम ट्रेडिशनल कंसेप्ट की बात करेंगे तो हम उसमें हम क्या बोलते थे कंट्रोलिंग को, कि कंट्रोलिंग क्या है, नेगेटिव फंक्शंस. नाउ व्हाई अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल कंसेप्ट, पहले की ज़माने की अगर बात करें, जो पहले जो कंसेप्ट था कंट्रोलिंग के बारे में, हम लोग क्या सोचते थे कि कंट्रोलिंग क्या है, इट इज़ द नेगेटिव कंसेप्ट. व्हाई? नाउ सी हियर you can see restrictions on employees activities, to have strict approach, provision of punishment or fine in case of employees making mistake, ट्रांसफरिंग देम और विद. अब देखो अगर हम पहले की बात करें तो पहले हम लोग क्या सोचते थे अगर ट्रेडिशनल कंसेप्ट में, कि अगर आपके एम्प्लॉयज़ काम नहीं कर पा रहे हैं, ओके, इफ़ दे आर नॉट एबल टू कंप्लीट द वर्क, तो उनको आप क्या पनिशमेंट दे देते थे, या फिर उनको उनके ऊपर फाइन लगा देते कि आपने इतना प्रोडक्शन इतने दिन में नहीं किया तो आपकी सैलरी कट हो जाएगी, या फिर आपका प्रमोशन हम स्टॉप कर देंगे. तो ये सब क्या था, इट इज़ द नेगेटिव कंसेप्ट of the controlling.
हमारे माइंड में क्या था कि कंट्रोलिंग मीन्स नेगेटिव, ओके, सैलरी कट कर दो या उनको पनिशमेंट दे दो या उनको जॉब से निकाल दो, ये सब पहले की बात थी. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट नाउ डेज, इफ़ यू टॉक अबाउट इन द मॉडर्न टाइम, नाउ कंट्रोलिंग, the concept of controlling has changed. Now it is known as the positive concept. Why? See, controlling is a corrective activity because the function of controlling is not to restrict the activities but to direct them in a right direction. अब हम एक्टिविटी जो चल रही है उसको स्टॉप नहीं कर रहे, वी आर नॉट प्रिवेंटिंग दैट पर्टिकुलर एक्टिविटीज़. पहले क्या था, उसको रोक देते थे, ओके, उसको यू कैन से दी, अगर आपका एम्प्लॉय काम कर रहा है रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा है तो उसको आप वहाँ पे स्टॉप कर देते थे. हमें उनको स्टॉप नहीं करना है, वी हैव टू नॉट प्रिवेंट देम, वी हैव टू शो द राइट डायरेक्शन टू देम कि आपको किस वे में काम करना है. पहले क्या था, उनको हम पहले वो वे नहीं बताते थे, वो काम को हम वहाँ पे ही स्टॉप कर देते. और अभी हम क्या कर, उनको प्रॉपर गाइडेंस दे रहे हैं, प्रॉपर डायरेक्शन दे रहे हैं ताकि वो राइट वे में काम कर सके. तो वो क्या हो जाएगा, कंट्रोलिंग. इफ़ दिस एक्टिविटीज़ आर नॉट डन एज पर प्लानिंग, अगर आप डायरेक्शन आपको कब देना है, जब आपका जो एम्प्लॉय है वो प्लानिंग के हिसाब से काम नहीं कर पा रहा है, उसकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो वो प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है. यू हैव टू, मीन्स द मैनेजर हैव टू गिव देम द प्रॉपर डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन टू योर एम्प्लॉय. सो इट इज़ व्हाट, इट इज़ द कंट्रोलिंग. ओके, और हमें दूसरा क्या करना है, कंट्रोलिंग मीन्स टू सी दैट द मिस्टेक्स विच वी हैव डन अर्लियर इट शुड नॉट बी रिपीटेड इन फ्यूचर. आ रहा है आपको समझ में कि जो मिस्टेक हमने कर दी है पास्ट में, कब कर ली है हमने, ये मिस्टेक पास्ट में हो गई है, ओके, पास्ट में ये मिस्टेक हमने कर ली है, उसको फिर से आपको रिपीट नहीं करना है इन द फ्यूचर. सो ये क्या हो जाएगा, कंट्रोलिंग. यू कैन राइट डाउन दिस ऑल्सो इन द एग्जामिनेशन दैट द मिस्टेक्स विच वी हैव made in the past, it should not be, to see that it should not be repeated in the future is known as the controlling. और अगर आप ये भी लिख सकते हो, to maintain the balance among efforts, result and resources and objectives. सब में हम क्या कर रहे हैं, efforts जो है हमारी, रिजल्ट हमें मिलने वाला है, उसके सब आप बैलेंस कर रहे हो, ओके. या फिर आप ये भी लिख सकते हो, कंट्रोलिंग मीन्स to see that the work is done according to the set standard or according to the planning or not. तो ये क्या हो जाएगा आपका कंट्रोलिंग. it is the last function. Keep in your mind, the first function of management is the planning and the last function of the management is controlling. Okay, keep in your mind. So we have completed controlling as well as the functions of management. I hope कि आपको समझ में सब कुछ आ गया होगा. If you have any doubt in the functions of management, first of all, keep in your mind, you have to see the last video in which I have discussed the three functions of management, that is planning, organizing and controlling. Planning, organizing and staffing, हाँ. And in this video I have discussed the remaining two. So आपको ये दोनों वीडियो देखने हैं और उसके बाद अगर कुछ डाउट होता है you can write down in the comment box. Okay, so this is my promise to you, I will solve your doubts. So here we have completed the functions of management and now we are going to discuss the coordination. Now, what is the meaning of coordination? Coordination is required in every functions of management. Okay, coordination is required in every functions of management. Coordination means what? To work together. Okay, to, you can say the work with means there should be a harmony. ओके, सब एकजुट एक साथ जो काम करना है उसको क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन. इट इज़ रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ऑफ मैनेजमेंट. इट इज़, यू कैन से दे, रिक्वायर्ड फ्रॉम प्लानिंग, फर्स्ट फंक्शन से लेके लास्ट फंक्शन तक क्या चाहिएगा आपको, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए. बिकॉज अगर आपके जो फंक्शंस है अगर वो उसमें कोऑर्डिनेशन नहीं है, यू विल नॉट एबल टू डू दी मैनेजमेंट. क्योंकि मैनेजमेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सब फंक्शन साथ में कंप्लीटली साथ में, मीन्स वन बाय वन काम करने चाहिए. और वन बाय वन काम कब करेंगे, कंटिन्यूसली काम कब करेंगे, जब वहाँ पे कोऑर्डिनेशन होगा तब. and then you will able to achieve the objectives of your business. So it is known as the coordination. Now we will discuss the meaning. Meaning is very easy. Here you can see to bring coordination and harmony. Harmony means what, ekjutta, together, to work together.
तब उसमें क्या होगा, हार्मनी कब आएगी अमॉन्ग द डिफरेंट, कहाँ पे अमॉन्ग द डिफरेंट फंक्शंस मीन्स दैट प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एज वेल एज अदर फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट। तो उसमें आपको क्या करनी है, हार्मनी लानी है। कैरिड आउट बाय डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन द बिजनेस यूनिट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट होंगे, वो सब डिपार्टमेंट में हार्मनी लाना, ओके, सब टुगेदर साथ में काम करेंगे, उसको क्या बोलेंगे हम, कोऑर्डिनेशन। क्या बोलेंगे उसको, कोऑर्डिनेशन। नाउ वी विल डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कोऑर्डिनेशन, कि हम कैसे पहचान सकते हैं, हाउ कैन वी you can say the know whether the particular concept is a coordination. Characteristics, the first characteristics of the coordination is that coordination is required for all the activities. I told you कि भाई प्लानिंग से लेके कंट्रोलिंग तक जितनी भी आप लोग एक्टिविटी करोगे उसमें क्या होगा, आपका यू कैन से दी कोऑर्डिनेशन होगा। Therefore मैनेजमेंट प्रोसेस इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट कोऑर्डिनेशन। अगर कोऑर्डिनेशन होगा then and then the management is possible, otherwise management is not possible. हम कोऑर्डिनेशन क्यों कर रहे हैं, बिकॉज वी वांट टू कंप्लीट ऑल द फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट। सो अगर कोऑर्डिनेशन होगा तो ही क्या होगा, मैनेजमेंट पॉसिबल है। मैनेजमेंट प्रोसेस मीन्स व्हाट, मैंने आपको बोला था, प्रोसेस बोलो या चाहे फंक्शन बोलो, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये सब क्या है, उसके फंक्शंस बोलो या उसकी प्रोसेस बोलो। द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स, कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट दैट वी हैव डिस्कस। टॉप लेवल हो चाहे मिडिल लेवल हो चाहे लोअर, सब जगह पे कोऑर्डिनेशन होना ही चाहिए। सक्सेस ऑफ कोऑर्डिनेशन डिपेंड्स अपॉन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन मीन्स व्हाट, कि आपको आपकी जो अंडर में काम कर रहे हैं, ओके, या आपकी जो ऊपर काम कर रहे हैं उसको आपको कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, आपको उनको बोलना पड़ेगा। दिन एंड दिन क्या होगा कि कोऑर्डिनेशन पॉसिबल होगा। उनको भी पता होना चाहिए, उनको भी पता होना चाहिए कि आप कहाँ पे किस वे में काम कर रहे हो, कितना काम कंप्लीट हुआ है। दिन एंड दिन द कोऑर्डिनेशन इज पॉसिबल। अगर आप कम्युनिकेशन ही नहीं होगा तो कोऑर्डिनेशन पॉसिबल नहीं है। द फोर्थ इज द कोऑर्डिनेशन इज नॉट पॉसिबल विदाउट कोऑपरेशन। कोऑपरेशन मीन्स व्हाट, सपोर्ट। आपको आपके एम्प्लॉयज़ का सपोर्ट मिलना चाहिए, चाहे आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, अगर उसमें आपको यू कैन से दी कोऑपरेशन मिलेगा देन एंड देन दी कोऑर्डिनेशन इज़ पॉसिबल। देन एंड देन कोऑर्डिनेशन इज़ पॉसिबल। अगर कोऑपरेशन होगा तो ही आपको क्या मिलेगा, कोऑर्डिनेशन पॉसिबल होगा। सो व्हाट इज़ रिक्वायर्ड फॉर कोऑर्डिनेशन, यू कैन से कोऑपरेशन इज़ रिक्वायर्ड फॉर द कोऑर्डिनेशन। कोऑपरेशन मीन्स व्हाट, सपोर्ट, ओके। अगर आपको सपोर्ट मिलेगा तो ही कोऑर्डिनेशन होगा। देयर आफ्टर फिफ्थ इज द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ बिजनेस रिसोर्सेज इज पॉसिबल ड्यू टू कोऑर्डिनेशन। अगर कोऑर्डिनेशन होगा तो देखो क्या होगा, आपकी जो वर्क चल रहे हैं, जो भी आप एक्टिविटीज़ कर रहे हो वो रिपीट नहीं होगी, और रिपीट नहीं होगी तो क्या होगा, आपके जो रिसोर्सेज है, चाहे वो फिजिकल रिसोर्स चाहे ह्यूमन रिसोर्स, जो भी रिसोर्सेज है वो वेस्टेज नहीं होंगे। अगर आप एक ही काम को बार बार कर रहे हो तो क्या होगा, आपके जो रिसोर्सेज है, जो आपका एम्प्लॉय आपको टाइम दे रहे हैं, ओके, तो वो फिर से डबल टाइम देंगे, तो डबल टाइम में क्या होगा, रिसोर्सेज का वेस्टेज होगा। तो अगर वो आपको प्रिवेंट करना है तो वहाँ पे क्या होगा, कोऑर्डिनेशन, ओके। कोऑर्डिनेशन मीन्स कि आप चेक करोगे, हाँ ये काम मेरा हो गया है, ओके, ये काम मेरा बाकी है, ये काम करना हो गया, ये काम करना बाकी है। इससे क्या होगा, आपके जो रिसोर्सेज हैं उसका वेस्टेजेस कम हो जाएगा और आपका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द कोऑर्डिनेशन। Thereafter, coordination is a part of every activity of management. Therefore, coordination is considered as a soul of management. अब उसको soul means आत्मा बोल सकते हो मैनेजमेंट की, कि अगर वो coordination उसमें होगा then and then management is possible. तो आप बोल सकते हो coordination is the soul of the management, क्योंकि मैनेजमेंट कब पॉसिबल है, जब उसमें कोऑर्डिनेशन होगा, इसलिए उसको क्या बोल रहे हैं, सोल। जिससे ह्यूमन बींग में सोल होती है, देन एंड देन दी यू कैन से दी मूवमेंट्स एज वेल एज ऑल अदर वर्क्स इज पॉसिबल। उसी तरह से मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन होगा तो ही मैनेजमेंट पॉसिबल होगा। सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड द कैरेक्टरिस्टिक्स। आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इम्पोर्टेंस, कि उसका इम्पोर्टेंस क्या है, हमें क्यों कोऑर्डिनेशन करना है। सो फर्स्ट इम्पोर्टेंस इज द कोऑर्डिनेशन मेक्स मैनेजमेंट फंक्शंस लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एक्सेट्रा इफेक्टिव। अच्छी तरह से अगर आपको ये सब फंक्शन करने हैं तो क्या होगा, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अगर आप कोऑर्डिनेशन कर रहे हो, इफ़ यू आर
डूइंग कोऑर्डिनेशन इट मीन्स व्हाट, ऑल द फंक्शंस विल बी इफेक्टिव, अच्छी तरह से वो हो पाएंगे। कोऑर्डिनेशन मेक्स पॉसिबल ऑल द बिजनेस एक्टिविटीज़ इन ईजी मैनर। अब देखो काम तो भाई सब कर रहे हैं, पर उसको अगर आपको ईजी मैनर में करना है, ईजी वे में अगर आपको उसमें काम करना है, तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो उससे क्या हो रहा है, हमारा जो वर्क है वो ईजी में, तो ये हमें क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, हमारा वर्क ईजी मैनर में काम कर रहा है, हार्ड हम नहीं, हमारा जो टाइम है वो हम सेव कर पाते हैं, हम कम टाइम में ज़्यादा एक्टिविटीज़ कर पाएंगे। वाई? बिकॉज ऑफ द कोऑर्डिनेशन, क्योंकि हम साथ में मिलकर सब काम कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपोर्ट देंगे, वी विल कम्युनिकेट विद ईच अदर। तो उससे क्या होगा, हम हमारा जो वर्क है वो इजी मैनर में होता रहेगा। ओके, सो थर्ड इज द कोऑर्डिनेशन लीव्स वर्क इनकम्प्लीट एंड नो पॉसिबिलिटी ऑफ द डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। अब देखो भाई, सिंपल में अगर मैं आपको बोलूँ तो कोऑर्डिनेशन होगा तो हम क्या करेंगे, वी विल गिव रिपोर्ट टू ईच अदर कि भाई मेरा ये काम हो गया, ये काम करना बाकी है। उससे क्या होगा, हमारा कोई भी काम इनकम्प्लीट नहीं रहेगा और हमारा कोई भी काम डुप्लीकेशन नहीं होगा, मीन्स डबल टाइम नहीं होगा, क्योंकि हम रिपोर्ट देंगे कि हाँ भाई मैंने ये काम कर लिया है, तो उससे दूसरा एम्प्लॉय फिर से वो काम नहीं करेगा। अगर देखो सपोज इमेजिन दैट देयर इज़ नो कोऑर्डिनेशन, तो सब अपनी अपनी मर्जी से काम करते रहेंगे, कोई काम डबल हो जाएगा, कोई काम रह जाएगा, तो उससे क्या होगा, मैनेजमेंट, प्रॉपर मैनेजमेंट, इफेक्टिव मैनेजमेंट इज़ नॉट possible. The fourth importance of coordination is the coordination maintains harmony among various departments of management. Harmony वहाँ पे आ जाएगी because they all work together. Okay, so उसमें क्या होगा, harmony आ जाएगी, वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ द मैनेजमेंट, इट मे बी सेल्स डिपार्टमेंट, सब अब क्या करें, सब साथ में काम कर रहे हैं। ओके, तो उसमें क्या होगा, देयर विल बी अ हार्मनी। Coordination enables to maintain a balance between order and the time of business activities performed by various departments. जैसे आप ऑर्डर दे रहे हो, फिर जो टाइम होगा आपका बिजनेस एक्टिविटी का, उसमें मेंटेन होगी बैलेंस आपकी। वाई? बिकॉज ऑफ कोऑर्डिनेशन। बिकॉज अब आप क्या कर रहे हो कि भाई, अगेन आई एम रीडिंग दिस point, coordination enables to maintain a balance between order and time of business activities performed by various departments. अब आप एक दूसरे को रिपोर्ट दे रहे हो कि हमने कितना काम कर दिया है, कितना काम बाकी है, तो जैसे क्या होगा, ऑर्डर जैसे ही मिलेगा आपको और आपकी जो एक्टिविटी है वो परफॉर्म करने में आपका जो बैलेंस होना चाहिए वो पॉसिबल होगा बिकॉज ऑफ द कोऑर्डिनेशन, बिकॉज आप सब साथ में मिलकर काम कर रहे हो, बिकॉज देयर इज़ अ हार्मनी। ओके, तो ये सब क्या होगा, मैंने आपको ऑर्डर दे दिया, चलो बराबर, अब ऑर्डर देने के बाद आपकी जो एक्टिविटी आप करने वाले हो उसमें बैलेंस होनी चाहिए, वो बैलेंस कब होगी, कोऑर्डिनेशन होगा तब। देयर आफ्टर द लास्ट इम्पोर्टेंस ऑफ द कोऑर्डिनेशन इज coordination leads towards the accomplishment of pre-decided objectives. If you want to achieve the objectives of your business, अब देखो ऑब्जेक्टिव्स आपने पहले से डिसाइड कर लिए होंगे, तो उसको अचीव करने के लिए वहाँ पे क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अगर कोऑर्डिनेशन होगा देन एंड देन वी विल एबल टू अचीव। अब देखो ये आपको क्वेश्चन अराइज होगा कि भाई ये ऑब्जेक्टिव्स हम कैसे अचीव कर पाएंगे, क्योंकि देखो कोऑर्डिनेशन होगा तो जितने भी फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के वो प्रॉपर वे में काम कर पाएंगे। अगर वो प्रॉपर वे में काम कर पाएंगे देन इफेक्टिव मैनेजमेंट इज़ पॉसिबल। अगर आपका मैनेजमेंट इफेक्टिव है सो नो वन कैन प्रिवेंट यू, आपके बिजनेस का जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या हो जाएंगे, अचीव हो जाएंगे, बिकॉज obviously management is good, management is effective, so you can easily achieve the objectives. So I think that it is enough for today's video. I hope that your concepts are clear. In this video we have discussed the remaining functions of management as well as the coordination. If any doubt arises in your mind, you are free to ask to me. You can write down in the comment box or you can follow me on the Instagram and you can ask me any doubt. मेरा ऑब्जेक्टिव है यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का कि आपके जितने भी कंसेप्ट हैं ओसी में, आई एम ट्राइंग टू क्लियर योर ऑल कंसेप्ट। तो मेरा यही ऑब्जेक्टिव है यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का। सो प्लीज़ सपोर्ट मी, एनी डाउट यू कैन आस्क, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, like this video and share it with your friends, and whatever doubt arises in your mind you are free to ask, keep in your mind, you are free to ask, you can write down in the comment box. Okay, so आपको जितने भी डाउट होते हैं पूछ सकते हो. थैंक यू सो मच
फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर से मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। सो तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए माय यूट्यूब चैनल नवाज़ दी टीचिंग की। थैंक यू सो मच।